Yes. So what's up, guys? I am Mangla. I'm the co-founder and CEO of E.co. I'm the vice president at the Byte Club, and I'll be taking your Byte workshops. So just for reference, मैंने 20 to 20K raise करा है for my startup. I have participated in national, international events and consistently won prizes. And मैं nationally भी अपने idea को लेकर गया हुआ हूँ. I've got government grants as well. So I'll be taking your workshop. Then we have Tushan Angya, Adrit Garg, and Ishita Batra as well. Hi guys, I'm Tvisha Nangya. I'm currently in grade 11 and I've been a part of Byte Club for 2 years now. So during these 2 years, I have participated in over 15 pitching competitions and I have won in every single one of them. Like I've got a position in every one of them because it's easy. Okay. Then I have then I'm an avid reader, writer. I'm also an international essayist. And most of all, I'm a public speaker. I have been to a lot of public speaking competitions. I've participated in debates, speeches, etc. And I'm looking forward to interacting with you all today in this workshop. सो गाइज मैं इतना मतलब आई एम लिटिल डाउन टू अर्थ, तो मैं इतना नहीं बोलूँगा अपने बारे में, बट आई एम अदरत गर्ग, आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप. ओवर द पास्ट ईयर्स मैंने भी बहुत सारे पिचिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा है एंड टिल नाउ मेरा भी विन रेट इज़ 100%. आई हैव बीन इन बाइट क्लब सिंस 2 years and I'm hoping for a good workshop. That's it. Hi guys, I'm Ishita. Right, I'm a public speaker and a published author dealing with research-based articles and just books itself. Right, I've also been invited as a panelist author at the World Book Fair in New Delhi. Right, and I'm also a graphic lead at Global Inkwell, and I've also been part of Byte for about 2 years and. I've had great experiences in pitching as well, and I really hope that we have a great workshop today. So that was it for us. Now we would like you all to pitch yourself. Pitch yourself as in, if you can't pitch yourself, give us an introduction. कोई तो बोलो. Names लेने पड़ेंगे. Otherwise, Guys, again, pitching yourself starts with taking initiative as well. So just speak up first. I know everybody's a little nervous or like conscious, but कोई बात नहीं. हमारी like खुद की introduction इतनी like informal सी थी, कुछ तो try करो, right? और ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में बोलना है. जिस लैंग्वेज में मतलब हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल हो उसमें बोलो. इट्स नॉट कंपल्सरी तुम्हें इंग्लिश में बोलना है. वान्या, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? वान्या गोयल. Yes, sure. I'm Vanya and I'm currently in ninth A. I love to work for social welfare and I have also connected with a lot of NGOs. I am the PR head and social media head in the Drafted magazine, basically a magazine covering social issues. And I have also started to work for another, passion project of research and publication. That's it for my side. I also want to add that I love to learn new languages and I have cleared the A1 level in German. Perfect. Kudos to you because you're the first one to speak. Moving on, Naksh, would you like to try? Yeah, sure. So I'm Naksh Luja from class 8th E, and I'm very much into techie things. I love to read and write books. I have written like 5+ books, and I'm also very much into space. I love astronomy, and I have taken part in many international and national space competitions. And I'm just a very chill guy and lazy guy. I just want to do whatever I want to do, and I play Roblox all day. Great. The best thing I loved about this introduction is that it was pretty honest, and it like helps a lot while getting attraction of the judges. कि judges को लगता है कि यार ये मक्खन नहीं मारने आया है. He is here to give real value. तो या अगर किसी की like these two starting one was like very बहुत सारी achievements सुनी सबने.
बट अगर नहीं है, you can just start with your hobbies, your name, and we'll just get started. Yes, yes, Mishika. Mishka, your mic is on. Would you like to go ahead? Hello. 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 Am I audible? Yeah, you हाँ know. जी, हाँ जी. Hello everyone. I'm Mishaka and I'm in class 10th. This is my first time in a workshop like this and I'm pretty nervous, but I hope that we have a great time. I love to read and I'm really into art and craft. Thank you. Perfect. Anyone else who'd like to go ahead? गाइस लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, फ्रेंच वाले भी हैं हमारे पास, संस्कृत वाले भी हैं, सो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो आप लोग। किसी को बोलना है? No one? पक्का? Okay. Yes, Disha. Hi everyone, I'm Disha Jain and currently I'm in grade 9 and I basically take interest in playing chess and trying new activities and I hope we have great time here. Perfect. Great. What's your elo? For chess, I don't play, like I don't have an international rating for FIDE, but on chess.com it's 1700. Great. Now I won't share mine. सेम सेम, मैं भी बोलने वाला था बट अब मैं नहीं बताऊंगा। तो अब Do you मेरी play बॉट online रेटिंग इज on like 21 2100 है मेरी बॉट रेटिंग, मैं बट तो दिशा गैम्बिट में फंस गया भाई, मैं नहीं बता सकता। मेरी बहुत कम है भाई। शुरू करूँ? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस। तो हाय गाइस, टुडे पिचिंग वर्कशॉप है। तो सबसे पहले मैं करूँगी, मैं बताऊँगी कि पिचिंग होता क्या है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज पिचिंग। तो बाय डेफिनेशन पिचिंग इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ कम्युनिकेटिंग एन आइडिया, प्रोडक्ट, project, service, or an opportunity in a way that convinces others to believe it, support it, invest in it, buy it, or take action on it. तो ये तो हो गया, मतलब पेपर पे लिखी हुई डेफिनेशन। पर इसमें एक वर्ड था जो पूरी चीज को, मतलब इट्स लाइक एन ओवरआर्चिंग गोल ऑफ पिचिंग, दैट इज कन्विंस। तो एट इट्स कोर पिचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट परसुएशन। परसुएशन की मतलब आप कैसे दूसरे पर्सन को कन्विंस कर रहे हो। तो द गोल ऑफ अ पिच, बहुत सारे गोल हो सकते हैं आपके। इट कैन बी टू गेट एन इन्वेस्टमेंट, to win a client, sell a product or a service, or gain an approval for a project, or even attract partners or customers to secure and support the idea. ठीक है? तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर तुम्हें तुम्हारा टेस्ट पेपर मिला अभी और तुमने देखा कि भाई इसमें तो मेरे काफ़ी गंदे नंबर आए हैं, तो तुमने एक क्वेश्चन जाके देखा जो जिसमें तुम्हारे 5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए थे। तो अब तुम मैम के पास जाके बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैम मैम प्लीज़ मुझे 5 मार्क्स दे दो। अब तुम मैम को मैनिपुलेट करोगे थोड़ा, तुम अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे ताकि तुम मैम को कन्विंस कर सको, ताकि मैम तुम्हें मार्क्स दे दे। फॉर एग्जाम्पल, मैम I attempted the method correctly, I understood the concept fully, and I only made a tiny mistake, so please see if you can what you can do। ठीक है? तो that's a pitch। बेसिकली यू आर प्रेजेंटिंग रीजंस टू परसुएड समवन कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए करे। ठीक है? तो अ सक्सेसफुल पिच हेल्प्स द ऑडियंस या जज जो भी है तुम्हारे सामने, इट हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट द आइडिया इज, कोर क्या है आइडिया का। इसके लिए तुम्हें खुद आइडिया काफ़ी अच्छे से समझ आना चाहिए जो तुम प्रेजेंट कर रहे हो। पेपर पासिंग हैक्स, यस, वाई इट मैटर्स। ठीक है? जो तुमने बनाया है वो पूरे वर्ल्ड में क्यों मैटर करता है, हाउ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। जो पीछे क्वेश्चन था वाई इट मैटर्स, उसका ही सक्सेसिव वो है कि हाउ इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। उसके बाद लास्ट एंड फॉरमोस्ट, वाई दे शुड केयर, है ना? कि मतलब जो जज है वो तुम्हारे उसमें क्यों इन्वेस्ट करें, तुम्हारे में ऐसा क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि वो इन्वेस्ट करे। तो बेसिकली दिस इज द कोर आइडिया ऑफ पिचिंग, दैट
when you're presenting an idea, you don't just sell a product, you sell a story. ठीक है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन. तो जैसे कि स्टैनली हो गया. किसी को स्टैनली पता है यहाँ पर? व्हाट एग्जैक्टली है स्टैनली? अगर किसी को पता है तो कर दो. ठीक है, पता है लोगों को स्टैनली पता है. तो अगर जिसको नहीं पता, तो वो इतना बड़ा सा एक जग होता है, अ जायंट टम्बलर, जो लोगों का लाइफस्टाइल सिंबल बन गया. ठीक है, तो बेसिकली इन लोगों ने बहुत चालाकी करी. इन्होंने स्टोरी सेल करी है, आइडेंटिटी बनाई है कि इनकी स्टोरी क्या है. दे हैव रोमांटिसाइज्ड एवरीडे लाइफ. पानी पीना, कि आपके पास स्टैंड नहीं होगा तो आप पूरे टाइम बस पानी पीते रहोगे. उसके बाद इनकी आइडेंटिटी क्या है? इनकी आइडेंटिटी है कि आई एम प्रोडक्टिव, हाइड्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, कलेक्टिव, बेसिकली अ क्लीन 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 गर्ल एस्थेटिक जो इन्होंने दिया है. तो इन्होंने आइडेंटिटी सेल करी है अपनी, इसलिए काफी बल्क में लोगों ने स्टैनली लिया है. एंड उसके बाद हम चलते हैं तो एक प्रोफेशनल पिच में अगर आप लोग प्रेजेंट कर रहे हो तो कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? Yes, for sure you can use the chat box to introduce yourself, for sure. So I was in a professional pitch. अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर, या कोई भी तुम कंपटीशन नहीं भी चल रहा, यू आर सिटिंग विद एन इन्वेस्टर. यहाँ जैसे मेरे साइड में कोई हाइपोथेटिकल इन्वेस्टर बैठा है, तो जैसे मैंने स्टोरी टेलिंग की बात करी, आप ये नहीं बोलोगे कि हमने एक बॉटल बनाई है विद सेंसर्स एंड मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन. आप ज्यादा इम्पैक्ट लाने के लिए कैसे शुरू करोगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, कि आप प्रॉब्लम बताओगे और बोलोगे कि मिलियंस ऑफ पीपल फेल टू ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे, लीडिंग टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ इश्यूज. अब ये क्या हुआ? आपने प्रोडक्ट बताई है, मतलब आपने प्रॉब्लम बताई है. तो जो जज होगा उसको पता चलेगा कि हाँ, why it matters, what problem it solves. So this is very important. अगर तुम कोई भी पिच शुरू कर रहे हो तो you should always start with problem. उसके बाद दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल ऑफ पिचिंग. तो किसको यहाँ पर हियर मी आउट पता है? हियर मी आउट पता है किसी को? लाइक हियर मी आउट किसी को नहीं पता? अरे वो ट्रेंड नहीं हुआ था हियर मी आउट वाला? ओके, वान्या को पता है, मिशिका को पता है, किसी और को नहीं पता हियर मी आउट. तो बेसिकली हियर मी आउट वाज अ वेरी फेमस ट्रेंड on social media. It went like you're sitting with your friends and you give an unpopular opinion. ठीक है, unpopular opinion दिया आपने, और फिर आप बेसिकली हियर मी आउट से किसी को कन्विंस कर रहे हो कि जो आपका अनपॉपुलर ओपिनियन है वो वैलिड है. तो इट्स सीक्रेटली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पिचिंग कि समवन स्टार्ट्स विद हियर मी आउट, व्हाई इज मिकी माउस लोकी फाइन. तो they spent 30 minutes convincing everyone that something that initially sounds very ridiculous, which is actually a hook. They're starting with a hook. They have an argument, evidence, and a conclusion. जिससे वो convince करे लोगों की हाँ, even though this sounds very ridiculous, but in my opinion, this is not ridiculous, and you're giving evidence for it. So a startup founder and a TikTok creator often use the same persuasion structure for convincing people. तो पूरा बॉयल डाउन करके इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अ पिच is basically a hear me out TikTok. Like, except instead of convincing people that a fictional character is underrated, you're convincing them that your idea deserves money, support, or attention. So that was it for what is pitching and how, like, why is pitching important. Now we're moving on to Ishita. Ishita, please take over. Okay, so thank you. So now that we know that what exactly is pitching and why we're pitching our ideas, why can't we just tell them कि ये idea है, खरीद लो या invest कर दो, right? अभी तक हमें ये समझ आ गया कि दुनिया में सिर्फ सीधा सीधा बोलने से कोई नहीं बात मानता, मैनिपुलेशन जरूरी है. एंड आई बी टेलिंग कि परसुएसिव कैसे होना है एंड लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है इनटू जस्ट इन्वेस्टिंग और get what you're asking for, right? वो दे देंगे तुम्हें if you follow some of these steps. From my experience, I have learned about 3 I's. As Didi said, that rather than pitch is not an idea, it's more of a story. तो उसके लिए 3 I's होते हैं. 1 I immersive, 2nd I interactive, and 3rd I interesting. Okay, and we'll discuss 5 steps इसके आगे. First step, hook your audience. कि like आप अपने ऑडियंस को स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इमर्स कर रहे हो अपने आइडिया में. यू स्टार्ट ऑफ विद लाइक अ
controversial take maybe, or just like something that they're not entirely convinced, but वही हमारी पूरी strategy है कि by the end of our pitch we'll convince them, right? So for example, start with an interesting question, fact या problem, कुछ भी चलेगा, right? For example, did you know that nearly 70% of new products fail because they don't solve real customer problems? Like Stanley को वापस देख लो, right? उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनाया, राइट? एवरीबडी वाज होल्डिंग सो मेनी स्टैंडीज, उसने इतनी सारी कोलैबोरेशंस लॉन्च की विद सो मेनी पॉपुलर ब्रांड्स, बट नाउ दैट वी सी वो एक फ्लीटिंग ट्रेंड था जो एकदम से कोलैप्स हो गया, राइट? सो like अगर आप ऐसी किसी controversial take के साथ start होते हो, the audience or the client is already hooked because they're interested in what you're saying, because हम एक बहुत ही trending example use कर रहे हैं that they like probably know of, right? So we'll move on to the second step now, which is describe the problem. Once you have them hooked, हम date देंगे, which is the problem itself, कि हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, एंड वो इशू को सॉल्व करना मैटर क्यों करता है, क्योंकि इश्यूज तो यार बहुत सारे हैं, है ना? बट कई ऐसे हैं जिनको लाइक सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुड genuinely lead to the welfare of society, right? So you have to pin down on a problem. For example, students often struggle to manage their time effectively, leading to stress and like lower academic performance. इसके साथ तो सब डील करते हैं, इवन मैं डील करती हूँ. I get so distracted by video games and like YouTube shorts, and लास्ट में फिर थोड़ी सी academic performance affect होती है, right? This is a big problem. Many people deal with it, and इसको solve करना matter क्यों करते हैं? अच्छे नंबर आ जाएंगे यार, है ना? टीचर से थोड़ी बन जाएगी आगे for future reference के लिए. So that's fun. Step number 3, present your solution. अब हमने प्रॉब्लम बता दी, हमने पहले हुक किया, फिर हमने प्रॉब्लम बताई, एंड नाउ दैट दे आर फाइनली कंप्लीटली इमर्स्ड एंड वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट वी हैव टू से, हम बिल्कुल परसुएसिव मैनर में ऐसे सेल करेंगे अपनी सॉल्यूशन को कि उनको ना करना आ ही ना पाए, ठीक है? सो लाइक बट जो आप बोल रहे हो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. लाइक यूज सिंपल लैंग्वेज सो दैट आपका जो जिस्ट ऑफ द आइडिया है, द सॉल्यूशन, राइट, वो क्लियरली और सिंपली उनको अच्छे से समझ आ जाए, जिससे कोई लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. बिकॉज इफ यू यूज लाइक कॉम्प्लेक्स या थोड़े ज्यादा ही प्रोफेशनल टर्म्स, they'll sometimes be confused कि आपका आइडिया है क्या and what does it really stand for, and we don't want that. We want to keep what we're asking for very clear, right? So just use simple language, complex words की कोई जरूरत नहीं है. The main goal is कि उनको solution का पूरा working and idea अच्छे से समझ आ जाए. That's what we want, right? Now step number 4, explain the benefits. Show the value of the idea, right? कि हमें value दिखानी है, but one other thing is how is our idea different from all the existing ones, because हम इतना ज्यादा grow कर चुके हैं as a world, right? कि एक प्रॉब्लम के लिए अब कम से कम 5 या 6 सॉल्यूशंस तो ऐसे मार्केट में मिल ही जाएंगे, राइट? एंड बिकॉज इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, हमें ऐसा एक नया यूनिक सॉल्यूशन लॉन्च करना है और उसको यूनिक दिखाना भी है, जिससे हमारा ही आइडिया जो है या सॉल्यूशन जो है प्रमोट होए, एंड वी आर बेटर देन अदर्स, वी जस्ट सिंपली बिकम बेटर देन अदर्स. सो आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना पूरा अच्छे से हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. एंड टू एंड इट ऑल, लाइक एंड विद अ कॉल टू एक्शन कि आप आए क्यों हो, राइट? आप अपना आइडिया पिच करने आए थे, राइट? आपको अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करना था, बट आप फाइनली चाहते क्या हो? Do you want approval? Do you want feedback? Do you want clients? Do you want funds, investment? What do you want? Make it clear. ऐसा नहीं होना चाहिए कि like by the end of the pitch you're compromising, right? We don't want that. Like negotiating, yes. Compromising, no. You'll like make your ask very clear कि आप आए क्यों थे and just the reason for it all. And किन को यहाँ like Duolingo पता है? And how many of you guys use it? Can you raise your hands? So काफी लोगों को पता है, राइट? सो लेट्स टेक, अब हमने 5 स्टेप्स पूरे डिस्कस किए, राइट? अब इसको हम अप्लाई करते हैं डुओलिंगो पे कि अगर उन्होंने क्या क्या किया होगा, एंड जस्ट लेट्स अप्लाई दीज 5 स्टेप्स टू पिच डुओलिंगो अगेन, बिकॉज इट्स सच पॉपुलर लाइक ब्रांड और लाइक वेबसाइट और एन ऐप जो बहुत ही ज्यादा क्लाइंटेल को इन्वाइट कर रहा है, राइट? सो व्हाट वुड बी द हुक फॉर डुओलिंगो?
let's just start with an example. What if learning a new language felt more like playing a game than studying for an exam? When I came in like 9th grade, I was very confused. पहले तो इतनी बड़ी तो वही प्रॉब्लम आ जाती कि लैंग्वेज जो है थर्ड वाली वो क्या चूज करें, एंड देन लर्निंग इट इज अ होल अनदर टास्क जो कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, राइट? सो इफ यू आर, अगर आपकी ऑडियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, लाइक especially 9th graders, you know, जिनको आगे जाकर लैंग्वेज सीखनी है, they're already hooked because they're also looking for an easy solution, right? They're not just कि like नहीं यार हमसे तो सब कुछ हो जाता है, हम तो जीनियस है, ओ जीनियस, राइट? होते हैं सारे बच्चे जीनियस, बट किसको शॉर्टकट नहीं चाहिए, राइट? प्रॉब्लम क्या है लेकिन? सो दैट्स द सेकंड स्टेप. मेनी पीपल वांट टू लर्न लैंग्वेजेस बट ट्रेडिशनल कोर्सेज कैन बी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड विद. मेरे पास 9th में संस्कृत थी, एंड अगर यहाँ कोई संस्कृत का स्टूडेंट बैठा होगा, सो यू गाइज नो कि लाइक ऐसे लाइक 6-7 टेबल्स होते थे बड़े बड़े, लाइक यू नो टेंसेस वगैरह के, एंड फिर हमें उनको बैठ बैठ के पूरा अच्छे से याद करना पड़ता था. सो मुश्किल था, राइट? सो ये प्रॉब्लम हो गई. नाउ मेनी पीपल फेस दिस प्रॉब्लम एंड इट्स यू नो अ मेजर प्रॉब्लम जिसको अगर हम सॉल्व कर दें तो काफी बेनिफिशियल बहुत सारी ऑडियंस के लिए रहेगा. सॉल्यूशन: Duolingo is a free language learning app that turns lessons into short interactive games that users can complete in just a few minutes a day, right? Benefits: impact by using streaks, rewards and bite-sized lessons. ये हो गया इनका unique selling point कि rewarding, like psychology में जब कोई एक्टिविटी हो, स्पेशली अ टास्क लाइक स्टडिंग, उसके अंदर तुम रिवॉर्डिंग ऐड कर देते हो तो उसका जो आउटपुट होता है एंड जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है देन अदर मेथड्स, राइट? तो उसका भी यूनिक सेलिंग पॉइंट यही था कि उन्होंने स्ट्रीक्स यूज किए, उन्होंने रिवॉर्ड्स यूज किए, एंड उनके लेसन्स भी बहुत गेम लाइक और शॉर्ट थे, एंड इसलिए सब इमर्स हो गए कि वाओ क्या ऐप है, राइट? एंड कॉल टू एक्शन, उन्होंने प्रॉबेबली पॉसिबली कुछ भी कर सकते थे कि ऑडियंस चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, बट an example again, if you're pitching something, even your idea could be we're looking to reach more learners and continue making high quality education accessible to everyone, whether it be with like collabs, investment, या सीधा clientele, right? So that's a full pitch of like a very popular app that we know. And similarly you could also shape your pitch so much so कि काफी ज्यादा persuasive and clear अपनी pitch बना सको, जिससे by the end of the day you get exactly what you're asking for even without negotiation. That's from my side. Handing it to the next person. So before we move, किसी को कोई doubts कुछ share करना है? Anything that is coming to your mind? कुछ भी? Anyone? कुछ फीडबैक हमारे लिए, जिससे मतलब हाउ यू वांट इट टू बी, कुछ भी कुछ भी बोलना है ना, बोल दो. जैसे कि when she was mentioning about Duolingo, मेरे दिमाग में आ रहा था मैंने आज का Duolingo नहीं करा. तो अगर कुछ भी आ रहा है दिमाग में, you can just go blunt and say. एग्जैक्टली बोल दो. This is gonna be really interactive session, and मुश्किल the speech was very structured. Great. हाँ जी वान्या. मेरे को एक चीज़ पूछनी है, जैसे इशिता दीदी ने हमें 5 पॉइंटर्स बताए कि हमें ये कवर करना है, बट जैसे हमारे स्कूल में गेम चेंजर हुआ था उसमें हमारे पास 2 या 3 मिनट ही होते हैं टू कवर एवरीथिंग. We will cover about that in the next session. वो बहुत important चीज़ है. That I'll be covering, don't worry. एक्चुअली हम तीनों ने, मैंने तुषाबे ने सेम टीम में गेम चेंजर्स करा था एंड वी डिड वेरी वेल इन दैट, तो हमें पता है, तो उसको हम पूरा कवर करेंगे. हम अपना वो भी प्रेजेंट कर देंगे जो हम जो हमारी थी. हाँ, हमने गेम चेंजर्स में किया था. So now we can move on. So Adit will take over and he'll tell about yeah, you continue. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं कि किसको लगता है मतलब सबसे इम्पोर्टेंट स्किल फॉर पिचिंग क्या है. सबसे पहले आई वांट टू आस्क दैट. कोई भी एक आइडिया हो कि स्पीकिंग स्किल्स. एनीथिंग एल्स? कॉन्फिडेंस. ओके, जो आपके रिस्पॉन्सेज आए एवरीथिंग इज राइट, बट आई थिंक माय क्वेश्चन वाज रॉन्ग.
पिचिंग को सिर्फ एक स्किल कभी भी नहीं चाहिए होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्किल्स। अब इस पीपीटी में बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे जो कि बेकार हो सकते हैं, और किसी को समझना है तो किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, वो फालतू ही है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्किल से, विच इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, जैसे इसमें लिखा है कि लड़कों को बात नहीं करनी आती, आई थिंक किसी को नहीं आती है बात करनी, ठीक है। अगर आपका आइडिया इज लाइक टॉप टियर, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप वहाँ सामने खड़े हो और आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि किसी सबने देखा होगा शार्क टैंक एट सम पॉइंट, एंड देखा होगा कि बहुत बहुत अच्छे उसमें वो आते हैं आइडियाज़, बट वो आते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेटेड। वो सामने जो शार्क्स बैठे हैं उन्हें समझा नहीं पाते कि उनका आइडिया है क्या, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, तो वो डील को क्रैक नहीं कर पाते। दैट्स वन मेन रीज़न कि वो कम्युनिकेशन, राइट। अब आप सबका कोई ना कोई आइडिया होगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप उसको अपने पिच करने गए, ठीक है, और बहुत मतलब ऐसे इट्स लाइक द बेस्ट आइडिया, मतलब कि इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अपने अच्छे से वेल रिसर्च्ड है, बट आप गए और आप बोल ही नहीं पाए कि क्या है भाई, समझा ही नहीं पाए सामने वाले को, आप कुछ भी बोला है तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। इट्स जस्ट वन ट्राई, वहां पर जो मिलता है एक बार मिलती है, आप बाद में जाके क्लैरिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब बहुत लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन है कि भाई हमने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर दिए ग्रामर के, एंड इंग्लिश यूज करी हमने फ्लुएंट, तो बहुत वो हमारी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। आई रिकमेंड कि हम हिंदी इंग्लिश बोथ यूज करें इन पिचिंग। इट्स रिकमेंडेड इन कॉम्पिटिशन्स कि हम इंग्लिश यूज करें, बट 70-30 रेशियो इज रिकमेंडेड कि 70% आप इंग्लिश यूज करो, 30% इन हिंदी, क्योंकि सामने वाले को भी बेटर समझ आएगा एंड आप भी हिंदी में बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे। इट्स टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल टू, ठीक है। क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लैंग्वेज, ओके। अब पर्सनली इधर तो आई प्रेफर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, विच इज कॉन्फिडेंस। अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगेन, बट आप में आपको खुद को उस पर कन्विक्शन नहीं है, तो वो फ़ायदा नहीं है। जैसे कि इनका आइडिया था कि आप एक साइड से आलू डालो, दूसरे साइड से सोना निकलेगा, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड आइडिया, बट उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था, विच मेड इट वायरल। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोगों को आप पे ट्रस्ट आता है बिफोर द आइडिया। अगर आप फिर शार्क टैंक दिखाओ तो पीयूष ऑलवेज सेज कि मैं जो प्रेजेंटर है, जो कि वो आया है स्टार्टअप ओनर, मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ, नॉट द बिजनेस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अच्छा है तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। एंड इन हॉर्स राइडिंग ऑल्सो, यू नेवर बेट ऑन द हॉर्स, बेट ऑन द हॉर्स राइडर, क्योंकि एट द एंड वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, राइट। तो अब आप वहाँ पर खड़े हो एंड आप अपना आइडिया प्रेजेंट करो, आप बोल रहे हो मेरे को लगता है ये काम कर जाएगा। एंड एक और एग्जांपल फ्रॉम शार्क टैंक इज पीयूष आज समवन की भाई तेरा प्रोडक्ट बेटर है कि बोट का प्रोडक्ट बेटर है। इट्स द हैमर पिच, सीजन 1 की थी, उसमें उसने पूछा कि तेरा प्रोडक्ट बेटर है कि अमन का था, ही सेड कि साउंड में मेरा बेटर है, कंफर्ट में अमन का बेटर है। यू शुड नॉट डू दैट। आपको खुद के आइडिया पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैंने अच्छा करा है, मेरा आइडिया बेस्ट है, ठीक है। इट शुड साउंड कन्विंसिंग। देन कम्स क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी से आप लोगों को याद रह जाते हो। इट्स लाइक आप अपना कर गए, आप दिन में 100 ऐड देखते होंगे, बट जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होती है वो याद रहती है। जैसे कि हम सबको याद है कि लेटेंट, मतलब मोस्ट लोगों को पता होगा कि लेटेंट की क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड दिस इज द न्यू सीजन की इमेज विच गॉट लीक्ड, एंड इसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स है। जैसे कि आप लोगों पे देखोगे तो एक यहाँ पर एक हथकड़ी बनी हुई है विच सिग्निफाइज कि जो भी केस हुआ था, जो सब चीज़ें याद रह जाती हैं जब आप लोग एपिसोड देखोगे, राइट। मतलब देखोगे नहीं, वो पता नहीं, गलत बात है, बट ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जो भी हम इतनी सारी एड्स देखते हैं, बट कुछ कंपनीज की एड हमेशा क्रिएटिव होती है। जैसे क्रेड की एड बहुत हमेशा से आउट ऑफ द बॉक्स रही है, बहुत अच्छी उनकी एड्स रहती हैं। तो क्रिएटिविटी आप मतलब आप याद रह जाएगा। देन कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और मार्केट गैप।
तो हम सबके प्रॉब्लम सॉल्वर तो है ही है, मतलब सो कॉल्ड जो भी सबके प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अब देखो, हर सक्सेसफुल बिजनेस या फिर कुछ भी हो, उसका एक प्रॉब्लम जरूर होता है जो आइडेंटिफाई करना होता है। कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। समटाइम्स देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, हमें क्रिएट करनी पड़ती है प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट प्रॉब्लम जरूर होनी चाहिए जो आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई ना कोई, हर बंदा यहाँ पर एक ना एक प्रॉब्लम सॉल्व मतलब फेस करता होगा दिन में। ठीक है, तो भाई उसको पकड़ो एंड जस्ट सॉल्व दैट। अभय, मैंने देखा अभय को, अभय के पास कम से कम 100 प्रॉब्लम्स रिटर्न है और वो उसके आइडियाज ढूंढता रहता है। ठीक है, तो आप उसमें से मतलब 99 बहुत खराब आएंगे आइडियाज, बट एक जरूर अच्छा होगा विच यू कैन बिल्ड फर्दर। ठीक है, देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, थोड़ी मेरे को बिहाइंड। यस, तो एज वी नो कि इन्होंने हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि ये बाहर जाके ये सब करते हैं, बट ठीक है। देन कम्स द टीम वर्क विच इज, हमने देखा कि एक दिन में दिस कॉकरोच जनता पार्टी वेंट वायरल, कितना टीम वर्क हुआ, एंड उसके बाद प्रोटेस्ट भी हुआ। तो भाई हम सब अकेले कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय सिंगल पर्सन, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अब मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि लाइक हमें सब कुछ नहीं आता, राइट? तो हमें एक टीम चाहिए होती है। कोई बंदा स्पीकिंग में अच्छा होगा, कोई डिजाइन में अच्छा होगा, कोई कोई लीडर होगा उसका, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा होगा। तो एट द एंड टीम जरूरी होती है। ठीक है, अगर आप, एक बंदा है जो बहुत अच्छा है जिसपे सब कुछ है, बट एक टीम है जिसपे सारी स्किल्स है बट एक एक बंदे के पास, मोस्ट प्रोबेबली द टीम विल विन। बिकॉज एट द एंड, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस आएंगे एंड एक फाइन डिसीजन निकल के आएगा। देन कम्स दैट कि एवरीथिंग इज पिचिंग, जो आप सारी स्किल्स सीख रहे हो, सारी वर्कशॉप हो गई जो आप अटेंड कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइन की होगी, उससे आप बेटर पीपीटी बना पाओगे। पब्लिक स्पीकिंग आप इसमें सीखोगे, मार्केटिंग इसमें आप सीखोगे, वेब डेवलपमेंट आएगी, उसमें आप बेटर वेबसाइट सीखोगे। अभय 3D मॉडलिंग की आपको वर्कशॉप दे रहा है जिससे आप प्रोटोटाइप्स बेटर बना पाओगे। तो एवरीथिंग यू आर लर्निंग, सारी स्किल्स ना कहीं जरूर लगती है इन पिचिंग। ओके, देन कम्स द कि क्या क्या फॉर्मिंग अ टीम, कि आप टीम कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, अगर अब कोई इस मीट में मानता है कि उसको सब कुछ आता है, मतलब सब सब चीज़ों में अच्छा, कोई ऐसा है इस मीट में, कोई तो होगा उसको लगता है उसे सब कुछ आता है, अच्छी बात है। अगर नहीं लगता तो मतलब सबको सब कुछ नहीं आता, राइट? तो सबको कोई ना कोई चाहिए। ठीक है, एक बंदा चाहिए होता है जो आइडिया पर्सन होगा, हु विल क्रिएट द आइडिया, हु विल रिसर्च अबाउट द आइडिया, एक रिसर्चर होगा। ठीक है, बिल्डर जो आपकी प्रोटोटाइप बनाएगा, प्रेजेंटर जो फाइनल डे पे आपका सारा आइडिया अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। वैसे तो एवरीवन शुड बी द प्रेजेंटर इन द टीम, बट एक बंदा होगा जो आपको लीड करेगा इन प्रेजेंटिंग। ठीक है, अब जैसे कि हाँ, डिस्पेरेंसी तो होती है कि कोई इसमें एक छोटा है, एक मोटा है और एक बड़ा है ऐसे, बट जब वो दोनों साथ में मिल जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ इज पीक, राइट? तो साथ में जब मिल जाते हैं, दैट्स द कोर की टीम साथ में मिलके चाहे कैसी भी हो, तो 3-4 लोग अगर उसमें टीम वर्क है तो फॉर श्योर जीतने ही जीतने वाली है। दैट्स इट, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो बता दो। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस वाली बीच में स्लाइड थी, मैं उसमें एक पॉइंट बताना भूल गया था कि क्या होता है कि हम बीच में, हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं, हम बोल नहीं पाएंगे, राइट?
एंड आप जब पिच कर रहे हो आप पीछे देख देख के नहीं बोल सकते, यू हैव टू सामने देख के बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को एक इससे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया था कि हम तुषा, मैं और अभय और एक और हमारा सीनियर, वी वर गोइंग फॉर अ पिचिंग कंपटीशन एंड लास्ट मोमेंट पे हमें पूरा स्लाइड डिलीट करना पड़ गया था, पूरा चेंज करना पड़ गया था सब कुछ इन द बस। 1 घंटे का रास्ता था और हमने नई नई वो बनाई थी पीपीटी, एंड हम पैनिक में थे कि अब हम क्या करेंगे, वहां पर जाके बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो फिर अब मैंने और अभय ने अपनी लाइंस मेमोराइज करी थी। अभय ने फिर अभय ने सोचा था कि मैं खुद से कुछ ना कुछ बोल दूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश। देन तुषा एंड बिकॉज तुषा हमारी लीडिंग स्पीकर थी एंड ऑफ कोर्स इतने कम टाइम में मेमोराइज करके बोलना फिर फंबल होता, तो तुषा ने क्या करा था उस वक्त, शी टुक माय फोन और उसने फोन में स्क्रिप्ट खोल रखी थी, उसने आई थिंक सो नोट्स लिख रखे थे छोटे बहुत, एंड वो ताकि भूल ना जाए वो फोन उसने ऐसे हाथ में पकड़ रखा था और वो बोल रही थी ऐसे ऐसे बीच में देख के, बट उसका आई कांटेक्ट सामने था, उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ उसमें कि मतलब लास्ट मोमेंट पे चाहे हमारे पास टाइम भी नहीं था, बट हमारे पास कोई इसमें डरने की बात नहीं कि भाई फोन देखेंगे फिर क्या सोचेंगे, उनको उससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो फोन वगैरह में, उनको फर्क पड़ता है कि हम एट द एंड बोल क्या रहे हैं और हम सही है कि नहीं, सो दैट्स वन थिंग। और सिर्फ ये नहीं कि आप फ़ोन में देखो, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड जो कार्ड्स होते हैं, नाम भूल गई मैं, पर जो कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश हाँ, फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर गिविंग अ बिजनेस पिच इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, सो यू कैन जस्ट टेक अ ग्लिम्स एट दोज कार्ड्स एंड देन गो अहेड विद योर पिच। सो अद्रित ने जो कहा वही। किसी को कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो अभी विल कंटिन्यू। सब सबसे पहले वी हैव टू आस्क देम फॉर अबे टू पिच एन आइडिया जो कि मतलब सबसे आसपास कुछ भी यूजलेस वगैरह उठा के। लाइक द मोस्ट यूजलेस थिंग, ठीक है, आपको जो यूजलेस लग रहा है आसपास आपके कि इसका कोई काम वाम है नहीं, बट आपको उसको ये दिखाना है कि भाई ये तो बहुत काम की चीज है, और ऐसे पिच करना है कि समहाउ की प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं करती, क्रिएट करनी है जबकि वो बहुत यूजलेस है रियल लाइफ में। सो थिंक अबाउट दैट।
Yes. I won't be able to open my camera, but I want to like pitch. So can I? Yeah, go ahead. Okay, so actually, I love to make like colorful notes or do like art and craft. So I like to like put all my stuff in one pouch so that all like I don't have to get up every time, and like I put all my things in one pouch, like my scissors, highlighters, and everything. But maybe it can be irritating sometimes, and I have to like dig around to find my scissors, and it is also time taking, and it is very irritating for me personally. So I have this pouch where there are many pockets, and I can arrange everything. So it is easier for me, and it is also less irritating. Okay, that was so good. Like, I face the same problem. Yeah, because so many people in like 9th 10th as well like to make such aesthetic notes with like pura highlighter वगैरह calligraphy वगैरह, and there are just a lot of like tools for that. So this could be like a great product for students and actually all professional adults as well, because सामान तो सबके पास बहुत सारा होता है. I like the fact that you included personally मुझे ये होता है, and what you could have done is कि मुझे personally ये लगता है like I feel this happens to me, and this is the same problem that people all over the world um, word क्या है, people all over the world go through. ठीक है, तो this is how you generalize the problem so that people can buy your stuff. But nice try. Thank you. अबे तेरा माइक म्यूट है. ये टूटा हुआ है या डिजाइन ऐसा है? देखो दिशा. अब हमें ये पेन टूटा हुआ था बट मेरे को तो डिजाइन ही लगा, तो भाई that's सही है. दिशा 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 बोलेगी. Uh, can I pitch? Like, I can't turn my camera on due to some network issues. All right. I'll start with a self count of 3, 2, 1. Good morning, everyone. Today, I would like to present a revolutionary product that has been silently supporting humanity: the brick. You need a house? Use a brick. You need to keep the door open? Use a brick. Feeling to do workout? Lift a brick. And do you need to stop papers from flying away? Use a brick. Unlike modern gadgets, the brick requires no charging, no software updates, no Wi Fi, no subscription fees. It is environmentally friendly and highly durable, and it has an average battery life of forever. काफी अच्छा था. भाई इसको फनी करने के लिए यू कैन ऑल्सो से कि इफ यू आर एंग्री, मतलब बीच में कभी कभी जरूरी होता है, इफ यू आर एंग्री यू कैन यूज अ ब्रेक टू हिट द पर्सन. इससे मतलब अच्छा लगता है. हाँ, मतलब this was Oh, genuine. yes. If this is I like just spontaneous I and thought not of the brick. I thought of the brick क्योंकि साइड वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है. तो मतलब स्पॉन्टेनियस के हिसाब से तो इट वाज वेरी गुड. it was very good. If this is not AI, then this is like very nice. Good job. No, I thought of it because I saw the construction happening क्योंकि like it's happening nearby. Oh, good job. Nice language used. Thank you. Naksh. Okay, so good morning everyone. I am Naksh Saluja, and today I'm here to present a pitch this fan. So, in India is one of the hottest countries in the world, and आजकल गर्मी की वजह से सबकी हालत खराब हो रही है. People don't know whether to study in school or go to the medical room for AC. सब लोगों की हालत खराब होती जा रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा. But this fan can bring a change into your life. With a full charge, this fan works up to 6 hours. This has 3 speed modes and many other features like water cooling. And this doesn't uses a battery; it uses charging. This comes with a charger, and through this you can change your entire life in summers. अब इंडिया की गर्मियाँ सर्दियों जैसी लगेंगी. How? My pleasure.
अच्छा था, काफ़ी अच्छा था नक्श। इसके बारे में ना हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें स्पीकिंग के बारे में कि कैसे शुरू करना होता है, गुड मॉर्निंग से नहीं करना होता। तो नेक्स्ट सेशन में कल जो होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। अभी YZRMOTBTHTUAS नहीं याद है। अच्छा,
तक याद है पूरा बस लेट मी टेक यू बैक टू वेयर ऑल ऑफ ओके। तो मैं बस सेम चीज़ जो मैंने 2 साल पहले पिच करी थी, मुझे अभी भी याद है फॉर सम रीज़न, तो मैं काफ़ी तेज़-तेज़ बोलती हूँ। Let me take you back to where it all began. On a visit to a farmhouse, we noticed something disheartening. The plants were wilting, and just the sight of them struggling to survive was painful. Later, as we moved to big farmlands, we noticed that a similar situation is being faced by a farmer that, despite putting in enough efforts, they yielded less. ये first चीज़ जो M&M का भी याद है मुझे, या एग्जैक्टली। तो इतना अच्छे से हमने स्मार्ट को पिच किया था उस टाइम पर दैट वी पुट इन सो मच एफर्ट्स कि इवन दो इट वाज 2 years पहले, मुझे अभी तक याद है फॉर सम रीजन। तो
in the rupees 9 workshop that you're providing, what all do you cover? In 9 rupees, you will learn how to automate your reports, how to automate your presentation, how you can create entire applications without Sell me this pen. It's a amazing pen. For professionals. Sell me this pen. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Sell me this pen. Well, this pen works, and I personally love this pen, and I think this pen. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Go ahead. Sell me that pen. Can I finish eating first? I'm eating today. Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. Holy. सो मिस्टर, अगर रिकॉर्डिंग में कुछ ऑडियो नहीं आती है मेरी, सो प्लीज फॉरगिव मी। थोड़ा सा मैंने माइक म्यूट कर रखा था उधर। सो मिस्टर बीस्ट की वीडियो में द थिंग इज दैट ही लिव यू ऑन अ क्लिफ हैंगर, ठीक है, वेयर यू आर थिंकिंग कि अब क्या होगा। मैंने $1000 की फ्लाइट बुक करी, अब क्या होगा। आई वॉज लेफ्ट इन द जंगल फॉर 24 hours। ओ शिट, अब क्या होगा। शार्क्स मेरे अराउंड है, आई एम लेफ्ट स्ट्रैंडेड इन द ओशन, अब क्या होगा। देयर इज अ क्लिफ हैंगर लीविंग यू टू थिंक कि यार अब क्या होगा। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ हुक, ठीक है। अ हुक इज अ सेंटेंस दैट मेक्स समवन से वेट, टेल मी मोर। एंड इन शॉर्ट यू गॉट अ क्लिकबेट द ऑडियंस कि वो आपकी बात सुने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मे बी लिंक्डइन कौन कौन यूज करता है। लिंक्डइन वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। तो जो जो यूज करता है, ओके, सो क्या कहते हैं, हाँ, तो दे मस्ट हैव सीन कि पहले एक बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही थी पोस्ट कि आई ऑलमोस्ट डाइड टुडे। दैट्स अ हुक बिकॉज दैट्स गॉट यू थिंकिंग, भाई ये क्या बंदा है, ये क्यों ये मरते मरते बचा है, स्टिल ही इज ऑन लिंक्डइन पोस्टिंग समथिंग। क्या कंटेक्स्ट और बोलना क्या चाहता है। क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन आई एम प्रेग्नेंट, उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन्स में एग्जैक्टली आई एम हैविंग अ बेबी आई एम करके। हैविंग अ बेबी, एंड फिर 2 नेक्स्ट उसमें कि दिस इज एंड माय। जैसे आई रिमेम्बर हमारे साथ एक फ्रेंड थी, उसने वो डाला था कि आई ट्राइड टू मेक बॉयज क्राई टुडे, और हाँ, उसके बाद उसने 3-4 लाइनें छोड़ दी। उसके बाद अब मेरा मन करा ही क्या इसने लिखा है, भाई मोर दबाना ही पड़ेगा। तो फिर जब रीड मोर दबाया, उसके बाद पढ़ा कि इट वाज अ क्लिकबेट, राइट। तो दैट्स द हुक। सो आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। So you have designed a free learning platform. So try to design a hook for that. कोई anyone wanna try? Will go. Uh, किसी किसी ने जो लास्ट टाइम बारी नहीं मिली and they wanted to speak up. जल्दी से यार. You have another session as well. You are getting late.
जल्दी से। विहान यादव, would you like to try? विहान, ओके, आप चैट बॉक्स में ट्राई कर सकते हो कि कोई भी फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए आपको वो करना है, एक वो बनाना है, हुक। Anyone else who wanna try? Vihan wants to try, I think. किसी को भी आइडिया आ रहा है, they can write in the chat box. या बोल भी सकते हो। या बोल भी सकते हो। We have really less to. Did you know this? This is good, but this is doesn't try like you told everything in just one sentence. Did you know this free learning platform? You can just say कि are you struggling with studies? जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है, हाँ यार नंबर तो आ नहीं रही, लेट्स सी ये क्या बोल रहा है। ओके, सो व्हाट वी हैव हियर इज कि लेट्स ट्राई। सो फॉर्म सो हमारे पास जो फॉर्मूला था, who प्लस प्रॉब्लम प्लस प्लॉट टेस्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी कैन हैव 3 in 5 Indian students can't afford coaching, so I built one that's free, ठीक है। And bad who could be कि my app helps students learn better. Okay, so my app helps students learn better. ये तो आरएन कर रहा है, वीएमसी कर रहा है, अन अकेडमी कर रहा है, ड्यूलिंगो कर रहा है। इट्स रियली जनरलाइज्ड, कुछ अट्रैक्शन नहीं बनी। ओके, बट व्हेन यू आर सेइंग इट लाइक दिस, 3 in 5 Indian students can't afford coaching, so I built that's free. तो इसमें एक इम्पैक्ट आया, एक आइडिया बना कि हाँ यार, ब्रो वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट, कुछ तो तगड़ा बोलने वाला है। ओके, आई एम लाइक कैजुअल, तो थोड़ा सा मूवमेंट। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आफ्टर दिस इज लाइक मेकिंग एन हुक, कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ठीक है। इफ यू आर सेलिंग समवन, जस्ट लाइक वी लर्न कि उसने क्या बोला, डू यू वांट अ पेन, उसने बोला नो। उसने बोला अच्छा, कैन यू राइट मी योर फोन नंबर एंड नेम ऑन द नैपकिन, तो उसने बोला आई डोंट हैव अ पेन, सो उसने बोला ये ले पेन ले। सो ही जस्ट क्रिएटेड अ सप्लाई, एंड उसके बेसिस पे उसने सेल करा वो पेन। ओके, सो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ पेंसिल हियर, ठीक है। तो पेंसिल का स्टूडेंट कौन है, एनीवन? पेंसिल कौन यूज कर रहा है? हाँ जी मिशिका, दिशा जैन को दे देते हैं इस बार चांस। दिशा, यू वांट टू स्पीक अप? Sorry. बस पेंसिल का ऑडियंस कौन है, और पेंसिल किसको चाहिए? Yes, I am one of the users. I mean, I do use a pencil. तो बेसिकली स्टूडेंट्स को चाहिए, Yes. स्टूडेंट्स को चाहिए। एंड हाँ सेकेंडली, जी. स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? मार्क्स, कि यार नंबर अच्छे आ जाए, बस नंबर अच्छे आ जाए, 99.5 परसेंटाइल आ जाए, परसेंटेज आ जाए, हाँ, बस रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो. रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो, राइट। सो कैन यू डिजाइन मी अ हुक लाइन फॉर दिस पेंसिल? Uh, Probably we can say that this pencil is too smooth and एग्जाम में अगर हम इससे लिखेंगे तो लाइक बहुत जल्दी लिख पाएंगे, which will fetch us more marks. Like speed का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Yes, we can. Like we can make a jingle, like a short one liner out of it. But जैसे अप्सरा ने अपने आप को मार्केट करा होगा, याद भी होगा किसी किसी को, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड Extra हैंड marks for राइटिंग। good handwriting. सो दे मेड, उन्होंने देखा कि हमारा ऑडियंस क्या है, हमारा प्रोडक्ट इज पेंसिल, ऑडियंस स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स को चाहिए मार्क्स, तो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, बस। एंड दिस हैज लाइक एक चीज चिपक चुका है दिमाग से कि हाँ यार, अब सरा एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, हम सबको याद है ना? तो दिस इज हाउ अ गुड मार्केटिंग वर्क्स, ठीक है? Now we have a exam. Now marketing में there is not much theory outside the books, but हम will be just covering examples. तो जैसे कि प्राइम था, लोगन पॉल, KSI, बहुत सारी ऑडियंस थी, पॉपुलैरिटी, स्कैरसिटी थी, ओके, ओके, हाँ। तो लाइक इट गॉट अ लॉट ऑफ ऑडियंस, बट क्योंकि वो इन्फ्लुएंस मार्केटेड था, ओके, तो लाइक इट गॉट अ रियली गुड रीच, बहुत ज़्यादा रीच बढ़ी उसकी ऑडियंस में, लाइक 10 out of 10, बट सस्टेनेबिलिटी में 4 out of 10 टुडे डेड। कोई लाइक बहुत कम चल रही है प्राइम एज अ ड्रिंक, बट स्टार्टिंग में इट गॉट अ रियली गॉट गुड रीच, ओके। देन वी हैव रोड, ओके, दिस इज अ ब्रांड, फैशन ब्रांड बाय हाईली बाइबर, and audience में like it got a really good reach among girls, तो क्योंकि it was an influence marketing, okay, and क्योंकि उन्होंने they had a really good product, they could stay in the market, build around it, repeat use, बहुत ज़्यादा like consist sustained हमारा वो रहा वहाँ पे market। then Labubu, ऑडियंस में 9 out of 10, किसने लबूबू नहीं चाहा, ठीक है? I have a younger sibling, like younger sister, and उसे खुद उसने क्ले से बनाया लबू। This was like so popular. Second, she was second in second class at that time. So you can think कि कितना ज़्यादा उन्होंने मार्केटिंग करी थी, कितना ज़्यादा उन्होंने जेंजीज एंड लाइक इन्फ्लुएंसर्स को अट्रैक्ट करा था। देन बट अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई मार्केटिंग करी थी, इट वाज नॉट सस्टेनेबल, एंड आज यू विल नॉट सी Labubu anywhere. वी हैव स्टैनली कप्स, जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी, ठीक है? देन रोड माइक्रोफोन्स, जो यूट्यूब पे क्रिएटर्स को फॉलो करता है, यू मस्ट हैव सीन कि बहुत ज़्यादा यू हैव सीन दिस ब्रांड। तो इसने क्या करा, दिस डजंट इट डिडंट मैक्सिमाइज ऑन मार्केटिंग, इसने एक ग्लोबल ऑडियंस बनाई, एक कम्युनिटी बनाई, सस्टेन्ड कम्युनिटी टू लाइक सेल देयर प्रोडक्ट, जो उनके प्रोडक्ट को पसंद करे, एंड थ्रू दैट क्योंकि देन उनका प्रोडक्ट अच्छा था, रिपीट कस्टमर आ रहा था, रिटेंशन वाज रियली गुड, सो वी हैड दे हैड सस्टेनेबिलिटी एंड दे कुड लिव लॉन्ग, लाइक survive for a longer time. So this is a small case study. तो लाइक किट कैट ने एक स्टेटमेंट निकाली थी कि 12 टन ऑफ किट कैट प्रोडक्ट्स हैव बीन स्टोलन। तो KFC ने डाला था, सॉरी गाइस, वी आर प्रोडक्ट टेस्टिंग ऑन आवर 12th हर्ब एंड स्पाइस। तो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े ब्रांड्स अनसस्टेनेबल बट हाइप यूज़ करते हैं। देखो KFC डजंट नीड मच ऑफ मार्केटिंग, इट हैज़ ऑलरेडी अ गुड ब्रांड रिकॉग्निशन, बट कभी-कभार वो हाइप प्ले करते हैं जिससे दे गेट अट्रैक्शन, कि मैं सोचूँ ओ KFC चलो KFC खाते हैं। तो अ, जैसे कि किटकैट की स्टेटमेंट आई थी कि 12 टन ऑफ किटकैट हैज़ बीन स्टोलन, तो many brands came to this saying, I was testing for a product of 12th herb and spice. Then Domino's ने डाला था, we would like to share our thoughts, we are launching a KitKat pizza. DoorDash ने करा था कि we can like you can add 500 to 600 KitKats to your carts. तो सबने मार्केटिंग करी थी इस छोटे से इंसिडेंट पे, बिकॉज इट वाज गेटिंग ट्रेंडिंग। अब आप न्यूज़ चैनल्स को देखोगे, वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप न्यूज़ को पकड़ते हैं सो दैट दे गेट मार्केटेड। यूट्यूबर्स ऑफन कंट्रोवर्सीज करते हैं कि दे गेट शेयर, और लाइक दे कैन शेयर देयर फॉलोअर्स, कि मैं देखूं इफ लाइक मेरे को मिस्टर वूज द बॉस पसंद है, ठीक है, एंड बाय एनी चांस
इन अनदर यूनिवर्स उसकी MKBHD के साथ लड़ाई हो गई, तो मैं देखूंगा यार MKBHD कौन है, ये हाउ लाइक कैसे कंटेंट बनाता है. And someone like some people, some companies did invert this situation as well. तो जैसे सब पिज्जा like official statements release कर रहे थे, Pizza Hut also made an official statement. So they said कि हमने KitKat नहीं चोरी करी. So they didn't mention KitKat. उन्होंने अपना बोला कि we are not. तो एक तरह से इन्होंने भी indirectly same situation को follow करते हुए we marketed themselves. So here is some pointers you can note for good and bad like marketing. Good marketing and bad marketing here is not based on कि कितनी hype लाता है, कितनी audience लाता है, but it's upon कि sustainable कितना है वो method in a longer run. So initial strategy. So like you can't write ads right now. Official statement तो मुश्किल है. So how do you like sell your product, reach people? So slide into the DMs of the people who have problem. Like Mera E.co is a product for plants. मैंने plants related audience को करा. So I contacted nurseries, I contacted brands to get their attention. बहुत सारी nurseries ने बोला yes this is a real problem because heat is बहुत ज़्यादा बढ़ रही है and this affects the plants a lot. बहुत ज़्यादा वो देना पड़ता है. Okay, and then make a 30-second reels बहुत ज़्यादा popular है. It's the best like most efficient way to get reach. Ask your 10 to like 10 friends rather than 1,000 strangers, क्योंकि 1,000 strangers will scroll away, but 10 friends at least देख तो लेंगे. I know कुछ friends देखते भी नहीं, but 10 friends देख तो लेंगे. And most importantly, post your journey publicly. If you are on LinkedIn, if you're not, then make a LinkedIn account. And if you are on LinkedIn, तो किसी ने कभी ना कभी तो मेरी पोस्ट देखी होगी. Okay, तो do like check out कि how I cover my startup. So final tip will be unique, be creative and unpredictable. ठीक है? Marketing is all about uniqueness. You can't same the same product on the same ad. Okay, you have to be unpredictable and be audacious. अभी like I just added this line because I saw कि बहुत सारे लोग nervous थे and even I was. मैं ऐसे ऐसे बात करता हुआ नहीं हुआ था. तो like you have to speak up. बिना डरे बोलना है. You don't have to fear कि कोई तुम्हें judge करेगा. Okay, and with storyline and good marketing, you can make a good ad. So a task for today is make a hook, make a storyline, and build a reel around it. ठीक है? And thank you. That's it. I was seeing chat. मैंने chat इतना पढ़ने नहीं लगा था मैं कि time waste होगा. I know you have a workshop. तो जिनकी workshops है, they can leave. And जो like can attend जिनको doubts है, they can stay here, ask doubts, and we'll be concluding the workshop. किसी को कोई डाउट्स है, कुछ शेयर करना है? किसी को कोई फीडबैक देना है? जोक्स थोड़े कम कर दो, अभी भैया जोक्स नहीं मारेंगे. Should we add thank you slide at the end? Yeah, in formal presentation it's necessary to like give a thank you slide to just credit कि यार वो सामने बैठकर सुन रहा Thank you for whatever listening. you are yapping. And उसके नीचे I think so we are open for questions is the best. क्योंकि Whenever you're ending, it's like thank you. Now we're open to questions. Now we're open to questions. तो अगर किसी के पास है तो मैं वेब और पिच में कंपटीशन बढ़ा दिया. अरे यार 3D मॉडलिंग और very पिच में कंपटीशन. unpredictable क्योंकि 12:30 खत्म होनी थी और 1 बजे खत्म हो रही है, तो ये तो बहुत unpredictable था. सही कह रहे हो. I would like to read the workshop. करो भाई करो. करो. इस बार पिचिंग फर्स्ट आनी चाहिए.
एक 0 तो नहीं मिस हो गया लास्ट में? ओ 0.5 कहाँ ओहो, चला गया? 0.5 कहाँ रह गया यार? अप्सरा अप्सरा पेंसिल। लानी आधा पड़ेगी। घंटा जो आपने एक्स्ट्रा लिया है ना, ये नक्श की वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप नहीं थी? अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ वर्कशॉप कुछ ज्यादा अच्छी होती है। ओ, How to get an bite? You have to focus on your workshop first, okay? whoa, stop messaging and And focus on that's how yourself. we get into bite. वैसे भी शायद मेरे को इतना अच्छा नहीं आता। अच्छा, anyone has any doubts? We'll be winding up the session. किसी को कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, they are building something they want to share, कुछ भी। लाइक अगर कुछ इंट्रोडक्शन में भी इनिशियली मिस हो गया हो, दैट यू जस्ट रिमेंबर कि येस आई शुड शेयर या आई वांट टू शेयर, वो भी बता सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगेन, कि लाइक अगर आप स्टार्टिंग में ना कर पाए हो या लाइक अब आपको कुछ बोलना है, सो यू कैन डू दैट एज वेल। The simple thing is कि like अगर जैसे while I was presenting बहुत सारे जोक्स आ रहे थे, तो वो कोई जोक्स मारने हैं यहाँ पे, तो you can now, because now I am not presenting, now you are free to say whatever you want. किसी को कुछ नहीं करना। चलो, I guess that's it for today. I'll be sharing, if possible, I'll be sharing this presentation and I'll share the task by tonight, कि थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो, and we'll discuss how to build your deck, pitch कैसे करना है। This was all theory, तो थोड़ा सा बोरिंग हो अब चुका हम है। कल काफी ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे स्पीकिंग पे, जो Yes. बहुत फन होने वाली है। So, हाँ, हम ठीक कर in the रहे हैं। next class, it's gonna be a master class in विहान। which we'll cover everything from speaking to deck designing to design thinking. So we'll be covering everything. In this session, we covered entire theory behind pitching, कि pitching करनी कैसे, क्यों करनी है, why pitching and all that stuff. तो be sure to join the next session. आज और का हम थोड़ा boring था, लास्ट but next will be really fun. काफी इंटरेक्टिव करेंगे कल, और लास्ट वर्कशॉप में होगा जो तुम प्रेजेंट करोगे और हम प्रॉम्प्ट देंगे। हाँ. Bye guys. You can leave. You can start leaving.